Come for the first question. A six coordinated complex of formula. What is the formula over here? It is CrCl3 dot 6 water has green color. A 0.1 molar solution of the complex when treated with excess of AgNO3 gave 28.7 gram of white PPT. The formula of the complex would be formula of the complex would be Ma'am, 0.1, green color is required for solving this, or it is just like that? It is just like that. Don't confuse. Okay. White PPT is formed for what? AgCl. So for what we have to find? हमें क्या find करना है? कितने mole of AgCl is present? How many mole of AgCl is present? That we need to find. So how we can find how many moles are there? (28.7) divided by 108 plus 35.5. So calculate करो कितने मोल आ रहे हैं. That means that amount of chlorine or that number of chlorine is present outside. 0.1. 0.1. Ma'am, we have to take formula volume as 1 liter. देखो यहाँ पे 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर को 1 ही ले 0.1 मोल लेके चलो बिकॉज लीटर इज नॉट गिवन ना. हाँ. यहाँ पे वैल्यू कितना आया है 0.1 और 0.2. 0.2. So we can say 0.1 molar or 0.1 mole complex contain 0.2 mole Cl minus ion. ठीक है. So formula will be CrH2O whole 5 Cl Cl2 dot H2O. Next question देखो. If excess of AgNO3 solution is added to 100 ml of 0.024 molar solution of dichloro bis ethylene diamine cobalt chloride
how many moles of AgCl will be precipitate? कैसे करेंगे फॉर्मूला, कैसे करोगे ये पहले बताओ मुझे। स्ट्रक्चर लिखना है। आईपैक नेमिंग हो चुका है ना हमारे। Yes, ma'am. हाँ, तो आईपैक नेमिंग से पहले स्ट्रक्चर लिखो। डाई क्लोरो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। डाई क्लोरो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो बाहर कितने क्लोरीन रहेगा? ओनली 1, बिकॉज इथिलीन डायमीन इज आवर न्यूट्रल लिगैंड। ये जो 1 क्लोरीन रहेगा दैट विल बी मेक द AgCl, वही हमारे पास AgCl बनाएगा। तो अब मुझे देखना ये है कितने मोल, देखो यहाँ पे पूछा गया है कितने मोल ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेट, तो कितने मोल प्रेसिपिटेट होगा? मैम Cl से जब Cl2 होगा तब क्या आधा हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे Cl प्रेसिपिटेट तो AgCl फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन इम्पोर्टेंट है ना, ओके तो यहाँ मैम। से Ag प्लस आएगा, यहाँ पे Cl माइनस आएगा, दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट। सो 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने मोल है, मिलीमोल कितना है, क्या करोगे 100 इंटू 0.024 मोलर, राइट। तो इतने कितने मिलीमोल है यहाँ पे? 2.4 2.4 millimole means how many mole? 0.024. Zero point zero two four. Why? Because in this case this act as a limiting reagent, this is present in excess, तो यहाँ पे इतने 1 मोल यहाँ से आ रहा है, so this 1 mole मैम पीछे शायद एक और जीरो लगेगा, 0.0024 होगा शायद। हाँ 0.002। So answer will be option, which option? Option 3. Which is diamagnetic, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर
31 फॉर मी इट इज, देखो तो सारे लोगों के लिए यही है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड A is chromium H2O whole 6 plus 3. Whether the same question is for you fellow? Level 1 set 2. Ma'am, can you write the question on the board? Like I don't have the book. Consider the following complex compound. CrH2O whole 6 plus 3. यहाँ पे वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रहा है lambda 1. B is chromium Cn whole 6 3 minus lambda 2. C chromium H2O whole 3 NH3 whole thrice plus 3 lambda 3. D chromium H2O whole 4 NH3 whole twice plus 3 lambda 4. Arrange according to the correct order of wavelength. What is the correct order of wavelength? देखो, you have to find the ligand. यहाँ पे कौन सा ligand हमारे लिए सबसे ज्यादा splitting create करेगा? It is Cn minus. If I go for the strength of the ligand, Cn minus is a stronger field ligand. इसके बाद कौन आ जाता है? Then it is ammonia. Then it is our water. This is the strength of the ligand. लिगेंड का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होता है, इफ द लिगेंड स्ट्रेंथ इज मोर, स्प्लिटिंग विल बी मोर, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, और वी कैन से बेटर टू वर्ड यूज द वर्ड CFSE स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मोर. अगर CFSE ज्यादा होता है E के साथ, लैम्डा का रिलेशन क्या है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, isn't it? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो लैम्डा सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? 1 में, क्योंकि ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, तो वहां पे स्प्लिटिंग कम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, सो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. गॉट द पॉइंट? सो लैम्डा 1 विल बी मोर. उसके बाद कौन आएगा? देखो, लैम्डा 4. वाई? बिकॉज यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 अमोनिया है, और यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 अमोनिया है. सो इसी कारण फर्स्ट लैम्डा 1, देन लैम्डा 4, देन लैम्डा 3, एंड लास्ट इट विल बी योर लैम्डा 2. सो दिस विल बी द वेवलेंथ ऑर्डर. Got it? Now, could you explain this one once again? See, you have to remember the strength of the ligand. हम लोगों ने क्या किया था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बन डोनर हैज द हायर स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड. कार्बन डोनर के पास स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज्यादा होगा. स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? डी ऑर्बिटल. लिगैंड क्या करता है? व्हाट द लिगैंड यूज्ड टू डू? They used to donate the electron to the vacant orbital of the metal, right? Vacant orbital, metal के vacant orbital में ligand अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है. तो जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड किसको कहते हैं? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या है बताओ? कार्बन डोनर सबसे पहले, उसके बाद कौन? नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद विच वन? ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद हैलोजन. दिस इज आवर ऑर्डर. तो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम्हें याद रखना है.
वंस यू गो फॉर द स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसमें तुम्हें क्या समझ में आता है? वाटर जो लिगेंड है, वाटर इज प्रेजेंट इन द बेस लाइन, मतलब वो ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ना तो वीक फील्ड की तरह काम करता है. इन दैट सम केसेस इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, in another cases it can act as a weak field ligand also. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? borderline ligand. Now the thing is, if the strength of the ligand is more means what? They are going to split the d orbital का जो splitting है वो ज्यादा हो जाएगा. d orbital किस हिसाब से स्प्लिट करते हैं? सपोज इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज T2G एंड EG, तो यहाँ पे उसका स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा? मोर. So if the splitting is more, then one electron from T2G need more energy to absorb and to go for EG subcell. T2G one electron need more energy to go to the EG subcell. So when it will try to come back, यहाँ पे अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस के साथ वेवलेंथ जो अपना इवॉल्व होगा और एब्जॉर्ब होगा, दे आर इनवर्सली रिलेटेड. एनर्जी के साथ वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, isn't it? So for strong field ligand create larger splitting, so wavelength which will be absorbed or emit, that will be small. Got it? F orbital splitting also there, but F orbital is much diffuse ना. मान के चलो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से, ये है हमारे न्यूक्लियस से डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन था, अभी लिगेंड आने के टाइम पे, लिगेंड मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये जब आने का कोशिश करेगा, दिस ऑर्बिटल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. अगर वो एफ ऑर्बिटल है, दे आर ऑलरेडी मच डिफ्यूज्ड, तो न्यूक्लियस के साथ उसका खुद का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर. तो कभी कभार ऐसा होता है ना, सोचो इस हिसाब से सोचो, तुम्हारे आसपास किधर भूकंप हुआ है तो उसका इफेक्ट तुम्हें जितना ज्यादा दिखता है, मान के चलो अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया किधर भी जाके भूकंप हुआ है तो उसका इफेक्ट तुम्हें पास आएगा क्या? नहीं ना. So same thing is going over here. D orbital is less diffuse rather than the F subcell. तो लिगेंड जब आएगा डी ऑर्बिटल के साथ, न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन था वो सिस्टम को ज्यादा स्प्लिटिंग वहां पे ज्यादा होगा. बट व्हेन यू मूव फॉर द एफ सबसेल, एज दे आर मच डिफ्यूज, तो एक दूसरे के पास वो ज्यादा रहेगा, मीन्स दे आर मच डिफ्यूज, उसका साइज बड़ा है. तो यहाँ पे अगर कुछ भी डेफिनेशन होगा बट दैट इज नॉट सो प्रोमिनेंट. एफ ऑर्बिटल का जो डेविएशन है, जो स्प्लिटिंग है, दैट इज नॉट सो प्रोमिनेंट एज आवर डी सबसेल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन can occur, but energy which is required for the FF transition is far lesser rather than your DT transition. So FF transition में जो कलर हमें देखने के लिए मिलता है that is quite fade. Intense color हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा. We cannot see this type of intensified color. Little intense color we can see for the 3D transition, but FF transition में वो color और भी ज़्यादा faded away हो जाएगा. ठीक है? Am I clear? Now the question is, which of the following ligand act as a flexi-dentate ligand? What do you mean by the word of flexi-dentate ligand? मैम बोलो. मैम एक बार ऊपर जाइए ना, वो ऑर्डर देखना है, बस ऑर्डर देखना है. हाँ सर, सॉरी, हाँ मैम हो गया.
which of the following ligands may be flexidentate? Option 1 EDTA 4 minus, option 2 CO3 2 minus, option 3 NO3 minus, option 4 all of these. What is your answer? What do you mean by the term of flexidentate ligand? जिसमें बहुत सारा साइट्स लोन पेयर देने के लिए। हाँ, कभी Donor है। मोनोडेंटेट, कभी बाइडेंटेट, कभी ट्राइडेंटेट, इसके हिसाब से काम करेगा. So which act as a flexidentate? EDTA act as a flexidentate ligand. Got it? So next it is your turn to answer. EDTA का coordination number क्या है? What is EDTA coordination number? 6. They can also act as a chelating complex, right? EDTA can also act as a chelating complex. So next question is, identify the correct order of wavelength of light absorbed by the following complex. COH2O whole 6 plus 3, COCN whole 6 3 minus, COI6 3 minus, COEN whole 3 plus 3. आंसर करो. You have done it, so अभी तुम खुद से आंसर करो. All of you try these questions. Already this type of questions we have done. ऑर्डर क्या होगा? थ्री सबसे ज्यादा, राइट? फिर 1, फिर 4, फिर 2. Who are not getting? Is it okay for everyone? Who are not getting this part? Now come for the next part. एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये रूल को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन मैम इज यूज. हाँ बोलो. इथिलीन डायमीन जो है वो क्या डोनेट करता है, मतलब विच टाइप ऑफ डोनेटिंग लेगा? डायमीन का मतलब ये है, स्ट्रक्चर ये है. तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, राइट? So that nitrogen will donate the lone pair to the central metal atom. ओके मैम। Question is, use the EN rule to predict the molecular formula for the simple carbonyl. Of
chromium 24, Fe 26 and nickel 28. Assuming all these metal has zero oxidation state. So this is our question. देखो बेटा, we don't know how many CO should be present, right? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? We can take chromium के साथ CO है n नंबर, आयरन के साथ CO है n नंबर एंड निकेल के साथ CO है n नंबर. ठीक है. अब हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए हमारे लिए? 0. नाउ here you have to use the ENA rule. EN rule को यूज करना है. कैसे यूज करेंगे? For Cr CO whole n, how I can use chromium? यहाँ पे 24 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी 24 इलेक्ट्रॉन है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. How many CO are there? How many CO are there? That CO is suppose 2n, because हर एक CO, हर एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन देगा हमें? 2 करके. सो टोटल हमें क्या करना है? नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर को ऑब्टेन करना है. सो व्हाट इज द नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर? नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना है? 36. 36. So we can say 24 plus 2n equals to 36. तो यहाँ से 2n का वैल्यू कितना आ रहा है? 36 minus 24. तो n का वैल्यू क्या होगा? 12/2, that is 6. So formula क्या होगा? Here the formula will be CrCO whole 6. Got it? So you can do other two. All of you do others. बाकी दो खुद से करो everyone. हो चुका है. बी का कितना आ रहा है? व्हाट इज बी? 5, राइट? इन का वैल्यू कितना आ रहा है? 5. तो AgCO होल 5 आएगा. सी का वैल्यू कितना आ रहा है? निकल के 4. NiCO होल 4 आएगा. Is it okay? Who are not getting, raise your hand. Who are not getting, raise your hand, please. Karthik, are you getting the part? Rishabh, is that okay? Shruti, is it okay? Yes, ma'am. And the flexi-dentate ligand question, ma'am, could you explain that one? Which one? Which of the following are flexi-dentate ligands? Flexi-dentate मतलब who can act as a bidentate ligand, monodentate ligand और polydentate ligand. ठीक है. तो देखो CO3 2- इसका और कोई चारा नहीं है. इसको हमें क्या करना है? 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, राइट? 2 ऑक्सीजन विल हैव द नेगेटिव चार्ज. कार्बोनेट जो है हमारे पास, कार्बोनेट एक्ट एज ए
बाइडेंटेड लिगेंड नेगेटिव से वो अटैक करेगा. बट व्हेन इट इज EDTA, depending upon the structure, we can identify sometimes EDTA act as a hexadentate ligand, mostly it act as a hexadentate ligand, but कभी कभार वो tetradentate ligand की तरफ भी काम करता है. How we can go for the structure? Tetradentate ligand के साथ कैसे काम करेगा? If I go for the structure, देखो this is the structure of EDTA, right? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है. ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है दैट कैन आल्सो अटैक. ठीक है. सो मान के चलो इन सम सर्टेन स्ट्रक्चर द नाइट्रोजन लोन पेयर विल नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. So there EDTA act as a tetradentate ligand. Sometimes it's happened that यहाँ पे जो pH है, the pH you have to maintain in the proper way. तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं? We can think that one of the negative oxygen will be protonated. तो उसमें हमें EDTA as a tridentate ligand की तरह काम कर सकता है. तो कभी ये tetradentate, कभी hexadentate, कभी tridentate, इस हिसाब से काम करता है. That's why it is known as a flexidentate ligand. Depending upon the pH, इसका जो pH है, depending upon the pH, it can act as a flexidentate ligand. Now next question is, derive the geometry of the complex correspond to the brown ring in nitrate test. Predict the magnetic moment of the complex. ब्राउन रिंग मतलब क्या है? हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ द ब्राउन रिंग टेस्ट, फेरस सल्फेट जो है इसके साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस होता है. ठीक है. वाटर in presence of this part, it will form first Fe and NO plus. NO जो ligands है that will give us FeH2O whole 5 and NO plus 2. This is the complex. It is called brown ring complex. तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस होता है.
फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होने के टाइम पे हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आयरन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट रेस्पेक्ट, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन इज प्रेजेंट इन क्लास 1, इज इन क्लास 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड यहाँ पे जो NO है, दिस NO इज नाइट्रोसिलियम आयन, मींस इट इज द पॉजिटिव लिगैंड, ये हमारे लिए पॉजिटिव लिगैंड है। सो Fe प्लस के साथ अभी NO प्लस का क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, हाउ वी कैन गो फॉर इट। देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकाल के रखना है +1, you have to go for electronic configuration, iron is 26, so it is 3d6 4s2, but +1 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, it is 3d6 4s1, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर एक्ट एज ए weak field ligand, water act as a weak field ligand. Not only that, this NO also act as a weak field ligand. तो यहाँ पे क्या होगा, we can say water and NO act as weak field ligand. Why NO is weak field ligand? It is oxygen and Positive nitrogen. charge, ना बेटा, positive charge is if it is having the negative charge, if it is having the negative charge, then that oxygen will create the much repulsion. But अभी NO जो है नाइट्रोसिलियम आयन है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुका है, घट चुका है, राइट। So now it cannot interact so strongly. It will, interaction means यहाँ पे repulsion. We are not thinking about the attraction. We are thinking about the repulsion. तो अब यहाँ पे NO plus हो चुका है. So it will not such repulsive force. It will not have the such repulsive force. तो यहाँ पे ये अभी क्या करेगा, weak field ligand की तरह काम करेगा. So there is no such pairing. Got the point? No pairing used to occur. This is a special case. You have to remember, जो NO यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन में है और आयरन अपने +1 ऑक्सीडेशन में है। रेयर केस जहाँ पे आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं एक्चुअली क्या होता है, इट हैज द कलर, ठीक है। NO का जो पार्ट है, देखो NO, इफ आई गो फॉर द NO लुईस डॉट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ NO के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, हमारे लिए ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वी आर थिंकिंग दैट इट इज अ आयन, आयन अगर इसको कंसीडर किया जाता है, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NO एक्ट एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट व्हेन इट इज जस्ट अ आयन इट विल लीव द ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इससे अगर लीव कर जाता है तो इट बिकम पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक इलेक्ट्रॉन है तो एक 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज वेरी अनस्टेबल, आइदर उसको गेन करना है, अदरवाइज इट हैज टू लीव द इलेक्ट्रॉन। Now, which one is preferable? Why it is going for class? Why it is giving the electron, not getting the electron from others? तो NO जो है यहाँ पे, it will come from HNO3. HNO3 से हमें NO मिल रहा है. So for that case, this NO is having the plus charge on nitrogen. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये प्लस चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव लिगैंड के तरह काम करेगा. सो
Why? Again, there is a chance of ligand to metal charge transfer. क्योंकि देखो यहाँ पे एक word मैंने लिखा है, this word is brown ring or brown color, so it will give a brown color compound. तो ब्राउन कलर का जो कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दिस इज कॉज अ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. समटाइम्स क्वेश्चन इज टू आस्क जो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में डीडी ट्रांजिशन होता है और देयर इज अ चांस ऑफ अ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ चांस ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम. चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? एनो से चार्ज. एनो का जो एक इलेक्ट्रॉन था, यही एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? आयरन के पास, आयरन +2 के पास. इसी कारण क्या हो रहा है? आयरन अभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जा रहा है और एनो इज बिकम पॉजिटिव. गॉट इट? सो हियर देयर इज अ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम. So here it is 3D 6 था, अभी यहाँ पे 4s7 है. मैम एक अनपेयर्ड होगा ना, एक पेयर्ड होगा ना बस. हाँ Easy. बस एक 4s में 1 रहेगा. इट इज 4p बैक एंड. तो 4s यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा. मैम ऊपर अपना 3D7 ड्रॉ किया है. हम तो 3D5 नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ 3D5 ही हो जाएगा. देखो यहाँ पे 3D6 81 है ना, 81. तो 3D6 4s2 था, तो 3D6 4s1 हो चुका है. तो देखो 3D6 है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो 4s बिकम वैकेंट फॉर अस. 4s अभी यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा. तो फ्रॉम NO you will get 1. How many waters are there? It is 5 water. तो कितना हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? मैम 4s D में क्यों चला गया? 4s से एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चला गया. If I go for NO में हमें इनर और आउटर. If I go for this, इनर को तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. आउटर S से हमें स्टार्ट करना है, अदरवाइज योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द P. तो P से तो ऐसे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आइदर इट विल गिव अस sp3 D2 और इट विल गिव अस D2 sp3. तो मैं अभी D को यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे. इट विल नॉट फॉर्म एनी इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि NO का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है. इट इज कंपैरेटिवली एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगैंड. केवल एक s ऑर्बिटल को यहाँ पे हटा सकता है ये. ठीक है, तो हमें s ऑर्बिटल चाहिए, अदरवाइज जियोमेट्री विल नॉट बी फुलफिल्ड. क्योंकि एक चीज को याद करो, पहले जियोमेट्री, फर्स्ट लिगैंड विल अप्रोच, देन देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. ऐसा नहीं है, रिवर्स नहीं हो रहा है. सिस्टम में लिगेंड्स, मेटल यहाँ पे है, 6 लिगेंड्स आ रहा है. अभी 6 लिगेंड किस हिसाब से आ रहा है? ऑक्टाहेड्रली. सो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्रीज में आइदर ये sp3d2 होगा और ये d2 sp3 होगा. अब NO का जो कंसेप्ट है, NO इज स्टिल नॉट सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सो यहाँ पे जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रॉपर.
इन द इनर डी सबसेल। तो D2sp3 का मतलब नहीं बनेगा, तो हमें S तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी कारण यहाँ से एक S इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ धकेल दिया है, इनर डी सबसेल में। गॉट द पॉइंट? First, it is the geometry or the orientation of the ligand, how they are approaching to the metal orbital. क्योंकि जियोमेट्री के बाद आता है हमारे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, विच इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सो आप कैसे रहा है, ऑक्टाहेड्रली। ऑक्टाहेड्रली में हमें जियोमेट्री क्या चाहिए, आइदर sp3d2 और d2sp3। अभी एनो इतना स्ट्रॉन्ग फिल है ही नहीं, तो इनर वाला डी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए क्या, sp3d2। तो sp3d2 के लिए s ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। So one electron from the s subcell has been entered into the d orbital. Got it? यस मैम। मैम यहाँ पे मैटर करता है कि ये NO4s में जा रहा है या H2O4s में जा रहा है? नहीं, मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है जनरली, because we don't know ना। After mixing, orbital will not be segregated that कि ये s orbital है, ये p orbital है। हर एक orbital का नेचर क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, right? So it is outer orbital complex. We have to say it is outer orbital complex. बहुत बार ये questions आ चुका है, inner orbital complex or outer orbital complex. So it is outer orbital complex. What is the hybridization? sp3d2. What is the magnetic moment? If I move for the magnetic moment, क्या लिखोगे? यहाँ पे magnetic moment क्या आ रहा है? mu equals to root over n into n plus 2 Bohr magneton. That is n equals to 3 into 5 Bohr magneton. That is root over 15 Bohr magneton. Got it? मैम n is equal to 3 क्यों हुआ? बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो अनपेयर्ड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बार पीछे जाइए ना। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। हम ये तो 3d6 करेंगे तब तो 4 आएगा ना। क्यों? pb6 हाँ pb pb बोल रहे हो? नहीं, 3d6 करेंगे तब तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन था, अभी हाँ। 1s से 4s से एक इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, कहाँ पे, इसके अच्छा। पास। तभी पेयरिंग हो चुका है, कितना रह गया है, 3। तो इसी का है, ठीक है। और आप बोले कि पेयरिंग नहीं होगा, तो पेयरिंग कैसे? पेयरिंग नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? मैंने क्या बोला, sp3d2 चाहिए ही चाहिए, और d2sp3। तो s ऑर्बिटल हमारे लिए वैकेंट चाहिए। पेयरिंग हाँ अगर होता तो यहाँ पे हो जाता ना, तो फिर यहाँ पे एक ही हाँ इलेक्ट्रॉन रहता, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट यहाँ पे हमें एस को वैकेंट करना ही है, बिकॉज द जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। तो तुम्हें ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बनाने के लिए एस ऑर्बिटल इज मैंडेटरी। इनर और आउटर, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेयरिंग हियर। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे धकेल देने के बाद कोई ऑर्बिटल एनो यहाँ पे आएगा, फिर वाटर आएगा, बिकॉज sp3d2 और d2sp3 हमें चाहिए। एस को वैकेंट करना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एस में रह चुका है, उसी को अंदर करो। पेयरिंग नहीं होगा मीन्स दिस डी ऑर्बिटल विल नॉट पेयर। यहाँ पे भी तो अनपेयर्ड है, ये तो इधर आ जाएगा। पेयरिंग का मतलब ये तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक डी तो वैकेंट रहना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। सो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग विथ, it is our outer sphere complex. Got the point? Difference समझ में आ रहा है? Are you getting the part?
ऑक्टा मैंने Yes, क्या yes, बोला, ma'am. जियोमेट्री तुम्हें ऑक्टाहेड्रल चाहिए तो जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करके हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल चाहिए, इसी कारण यू हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s to the inner d subset. Now come for this part. Question is, choose the incorrect regarding stability. Option A, epinephrine plus 2 greater than epinephrine whole thrice plus 3. Epicn whole 6 4 minus greater than epicn whole 6 3 minus. Next option, Fe dipyridine whole thrice plus 3 greater than Fe dipyridine whole thrice plus 2. Now the question is, which one is incorrect? Which one is incorrect? More than one option. Which one is incorrect? हम स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे करते हैं? Beta stability depend upon our CFSE, right? जितने ज़्यादा आयन का चार्ज ज़्यादा होगा, so stability of the complex will be more, right? Charge अगर ज़्यादा होगा, if the coordination number will be more, CFSE also more, right? बॉन्डिंग में अगर किधर भी तुम्हें सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखता है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी मोर. तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर. वन इज द चार्ज, अनदर इज द लिगैंड किस हिसाब से है, वेदर देयर इज एनी चिलेशन फॉर्म और नॉट. ठीक है, अगर चिलेशन होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी मोर. ठीक है. If there is any synergic bonding means what we have done in the earlier class, sigma pi compound formation, so stability of the complex used to increase. So based on that you have to go for the answer. Tell me what is your answer. Step incorrect पूछा गया है, क्या होगा? वन तो इनकरेक्ट होगा. वन तो incorrect है. टू भी इनकरेक्ट है. टू भी incorrect है. Why two is also incorrect? What is the reason? +2 है ये पहले वाले में, सेकंड में +3 है, बट +3 तो ज़्यादा स्टेबल है जितना ज़्यादा चार्ज. Very good. So write down the factors affecting the stability of the complex. All of you write down the factors.
क्या क्या फैक्टर हो चुका है हमारे लिए, क्या क्या बोलेंगे बताओ, वन बाई वन व्हाट आर द फैक्टर्स? चार्ज, Charge of the central metal atom. If charge is more, write down the point. If charge is more, then stability of the complex ion will be more. Second point. Second point क्या होगा? बॉन्डिंग, If there is any synergic bonding means sigma as well as pi, both are present, then obviously that stability of the complex will be more, right? Third point क्या होगा? थर्ड पॉइंट में चिलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? चिलेशन अगर फॉर्म होता है, चिलेटिंग रिएजेंट अगर फॉर्म होता है, चिलेटिंग एजेंट अगर फॉर्म होता है, इन दैट केस स्टेबिलिटी ऑब्वियसली मोर. So stability depends upon these three factors. One is the charge, another is the chelating effect, another is your nature of bonding. Now there is one word that is called overall stability constant and stepwise stability constant. Overall stability constant किसको कहते हैं and stepwise stability constant किसको कहते हैं? Suppose M water is present and it is treated with the ligand, it will give us M ligand and water molecules. So if I consider the stability constant of this coordination compound MLN, that stability constant is called overall stability constant. बेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? Overall stability constant. How we can define this overall stability constant? Beta n will be MLN divided by concentration of M water whole to the power n L to the power n. We have done this equation from our very childhood. We have done this equation. इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग ये वाली इक्वेशन देख चुके हैं. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. स्टेप वाइज वन बाय वन वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द लिगैंड. यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है लिगैंड के अंदर, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस हो रहा है. So here it will be Ml water whole to the power n minus 1 plus water molecule. It is denoted as K1. तो K1 को हम लोग क्या लिखेंगे? Ml water n minus 1 L. ठीक है, क्योंकि 1L has been replaced. देखो एक ही L आया है तो इसी कारण यहाँ पे 1L we have right. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? What we can write for the next step? MlH2O n minus 1 plus again 1L, that will give us Ml2 H2O n minus 2, isn't it?
that will be denoted as K2. इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? K2. So what is the expression for K2? K2 लिखो ऐसा. K2 क्या होगा हमारे लिए? Ml H2O n minus 2 divided by M H2O n minus 1 L. So if I go so on, अगर ऐसे करते हम लोग जाते हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें? Last water molecule has been replaced by the L, so that will give us MLN plus water. It is called Kn. So what is beta n? Beta n मतलब क्या? Beta n will be equals to K1 into K2 into K3 dot 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 Kn. ठीक है? So these K1, K2 and Kn are called stepwise stability constant. And beta को क्या कहा जाता है? Overall stability constant. So K1, K2, K3 dot dot Kn are called stepwise stability constant. And beta n is called overall stability constant. वन बाई बीटा n को क्या कहा जाता है? वन बाई बीटा n is denoted as instability constant. Actually, stability constant वैल्यू जितना ज्यादा हाइयर होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा हाइयर होगा, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा. वी कैन से ओवर हियर, इफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू इज हाइयर, the complex is more stable. Whereas अगर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट explain the dissociation of the complex into metal and ligand. So instability constant relate the dissociation of the complex into metal, ion and ligand. ये जो बीटा एन है, दिस बीटा एन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी. बीटा एन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा एन विच इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. बीटा एन इट इज ऑल्सो कॉल्ड thermodynamic stability.
Now if stability constant value is high, then complex should be less stable now, because it will easily dissociate, because हाँ, K is if the stability constant value is high, then complex will be more stable. देखो बेटा, एक चीज याद रखो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहाँ से आता है? बीटा से। बीटा मैम क्या? हाँ बोलो। मैम ये कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स, ML वाला या MH2O वाला? नहीं, एम एल वाला। MH2 वाला तो हाइड्रेटेड आयन है। देखो, वाटर के अंदर ही रिएक्शन होगा। सॉलिड मेटल कैनॉट अंडरगो रिएक्शंस, राइट? रिएक्शंस करने के लिए मूवमेंट इज एसेंशियल। तो उसको कहाँ पे डिजॉल्व करना है? वाटर के अंदर। तो पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग को क्या करना है? रिप्लेस करना है किससे? और कोई मेटल एटम। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, MlN। अगर ये आसानी से फॉर्म होगा तो इसके मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो M और L का कंसंट्रेशन क्या होगा? उसके हिसाब से कम होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एल बीटा का वैल्यू डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यू हैव लर्न इन आवर इक्विलिब्रियम चैप्टर, अगर राइट साइड ज्यादा स्टेबल है तो ऊपर वाले पार्ट ज्यादा रहेगा। सो ऑब्वियसली क्या होगा हमारे लिए? स्टेबिलिटी विल बी मोर। गॉट इट? अदरवाइज तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। Am I clear? yes ma'am. Yes. तो काइनेटिक स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी? देखो, थर्मोडायनामिकली स्टेबल अगर हम लोग बीटा को कहते हैं तो काइनेटिक मींस ईच स्टेप। तो स्टेप वाइज रिएक्शन कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? काइनेटिक स्टेबिलिटी के हिसाब से मान सकते हैं। इट इज नोन एज द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट कम फॉर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो, कल ही हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर चुके हैं। लिटिल पोर्शन इज लेफ्ट बिहाइंड। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड यूज्ड टू फॉर्म फॉर द ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स? सो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। In organometallic complex, the bond which can be formed over here, that is the sigma bonded. Only the sigma bonded organometallic compound can be formed between ACE and P block elements. ACE and P block element. जैसे if I go for the example of this type of sigma bonded organometallic compound का अगर example देख लेते हैं, यहाँ पे MC बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, Al2CH3 whole 6, Al2Cl6 whole 6. Which type of bond is present? बताओ। If I ask you, यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। और बनाना बॉन्ड किस टाइप का? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट? क्योंकि कार्बन के ऊपर तो और कोई एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहना है। कार्बन ऑलरेडी मेक द बॉन्ड, 4 बॉन्ड उसका बन चुका है। तो अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल शेयर, तो ये हमारे लिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इट विल फॉर्म द बनाना बॉन्ड। सिमिलरली इफ आई गो फॉर ACH3, that is only from the sigma bond. ये केवल हमारे लिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बनाएगा।
If I go for CH3Li, that is also our 2 center 2 electron bond. So in this case all are sigma bond only. Now next it is pi bonded compound. Pi bonded जो compound होगा that is present for D and F orbital. So next it is our pi bonded organometallic compound. Of D and F block element. So if I go for the most important example, pi bonding का example हमारे लिए थोड़ा सा important हो जाता है. One example is present for the Dice salt. Another example is our sandwich compound. Actually, in sandwich compound, they are further divided into ferrocene and dibenzene type of compound. What is Dice salt? बहुत important है हमारे लिए. What is Dice salt? PtCl3C2H4 minus is called Dice salt. If I go for the structure, अगर इसका structure देखा जाता है, so platinum के साथ 3 chlorine atom और C2H4 means ethene. Ethene molecule will form the coordinate bond. यहाँ पे ethene molecules का जो pi bond है, that will form the coordinate. ठीक है? So this is known as Dice salt. Now when it is our sandwich salt, we have to forms covalent. कोवेलेंट है यहाँ पे. इट इज नॉट कोवेलेंट, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लोरीन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. 3 क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. और पाई बॉन्डिंग कहाँ पे है? C2H4 के पास है. सो दैट C2H4 through pi bonding it will give the electron. ठीक है? मतलब तो pi bond डोनेट हो जाए. pi bond used to donate to the vacant orbital of platinum. एक चीज याद रखना, निकेल can form DsP2, but platinum, palladium, they are always from sp2. इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा, they should be always square planar complex. कभी ये टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा. प्लैटिनम, पैलाडियम always form square planar complex. So square planar complex मतलब क्या? Square planar complex means what is the hybridization? DsP2 will be the hybridization. So कोई भी ligand हो, चाहे वो strong field, चाहे वो weak field. If I ask you PtCl4 minus, what is the hybridization? What is the hybridization? Though it is our weak field ligand, but the hybridization will be DsP2. Why? Because platinum और palladium हमेशा क्या बनाएगा? इनर्ट स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनर्ट स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाता है. इट विल नेवर फॉर्म द आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? DsP2. कभी भी sp3 नहीं होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. Platinum and palladium in coordination number 4 always form DsP2, that is square planar complex. कौन सा कॉम्प्लेक्स? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है. Now when you go for the ferrocene, ferrocene मतलब क्या? See, when it is our pentadienyl group, देखो एक नेगेटिव आयन रहेगा.
negative charge रहेगा. So here, how many electrons are present? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is aromatic, isn't it? So when it is pentadienyl group, this pentadienyl group make the coordination bond with the pi electron cloud. यहाँ पे जो pi electron cloud है वो क्या करता है, मेटल एटम के साथ, कोई भी मेटल एटम, आयरन हो चाहे क्रोमियम हो, जनरली दे यूज टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है. सो मेटल एटम के साथ वो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बॉन्ड करेगा. इट विल मेक द बॉन्ड विद द मेटल एटम थ्रू द पाई बॉन्ड. So we can say over here, in ferrocene, cyclopentyl dienyl anions make coordinate bond with central metal atom through pi bond. These are aromatic, right? ये जो पार्ट है ये क्या है हमारे लिए aromatic. Why it is aromatic? देखो यहाँ पे 4n plus 2 pi electron system valid है. How many electrons are there? If you consider the negative charge also, there are 6 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 pi electron system are present. So when it is 6 pi electron system, it will be aromatic. So ferrocene, which is cyclopentyl dienyl anion, make the coordinate bond with central metal atom through the pi bond formation. Now again benzene, mostly when we go for the benzene, central metal atom will be chromium. Generally जब chromium रहता है तब benzene ring, they will donate their pi electron cloud to the vacant orbital of the chromium. So we can say for chromium, the benzene ring used to donate the pi electron cloud to the vacant orbital of chromium. Now next come for the another type what we have done earlier class, that is our sigma and pi both are present, where sigma bonding and pi bonding, that is synergic effect is present, which is our metal carbonyl bond. So we have already discussed the metal carbonyl bond. So I am here now. Ma'am, can you show the diagram? Ma'am, can you show the diagram? Yes, ma'am. done. Now next it is the importance of our
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? First, when we go for the coordination compound, we are using it in the biological system. कहाँ पे यूज होता है? बायोलॉजिकल कौन कौन से सिस्टम में? फर्स्ट इट इज अवर क्लोरोफिल, next in hemoglobin, another is vitamin B12 which is called cyanocobalamin. So in all these cases, when we go for the chlorophyll, what is the central metal atom? It is our magnesium plus 2. Okay, and what is the ligand over here? Ligand कौन है यहाँ पे? Porphyrin. When it is our hemoglobin, यहाँ पे central metal atom कौन है? Iron. ठीक है, and here also which one is the ligand? Morphine is act as a ligand. Porphyrin act as a ligand. When it is B12, cobalt plus 2 act as a ligand. Cobalt plus 2 act as a central metal atom. Okay, so here which are the central metal atom and which are the ligand? Generally ligands are not used to come. Central metal atom is important for you. So it is porine. Porine acts as a ligand. Now सबसे ज़्यादा important जो है that is our analytical chemistry. In the next class we are going for the analytical chemistry. तो जब हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तब हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिएक्शंस देखने के लिए मिलता है. So it is present in our analytical chemistry. जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक दो तीन एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे Fe+3 it is react with thiocyanate and give us a blood red color. You have done in your organic chemistry also that thiocyanate के साथ अगर Fe+3 का reactions होता है then you will get perithiocyanate. Which is blood red color. When copper plus 2 is present, if you use ferrocyanide, potassium ferrocyanide, it will give us chocolate color PPT. It is chocolate in color. Not only that, in case of the nickel plus 2 can be determined by dimethylglyoxime. Dimethylglyoxime, very important. What is the structure of dimethylglyoxime? This is the structure in basic medium. OH minus is required. So it will form a chelated complex. Dimethylglyoxime will form a chelated complex.
मैम वो DMG का नाम क्या है? डाइमिथाइल लाइऑक्सिन। ओके मैम। क्वेश्चन आपसे आता है हाउ मेनी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर देयर, इसी कारण स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के याद कर रखना, देयर आर 2 इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। सो इन द स्ट्रक्चर इट विल गिव अस रेड पीपीटी। So this is the special reaction for nickel plus 2. For metallurgy also we are using the complex third one. In metallurgy also we are using the complex where कौन से इसमें बॉन्ड प्रोसेस में वी आर यूजिंग, और कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं बताओ? लीचिंग में साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज बॉन्ड प्रोसेस? क्या होता है? निकल के साथ कोड CO का रिएक्शन होता है, दैट विल गिव एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, so this is further decomposition. If I heat it further, higher temperature में it will give us nickel and 4CO. Comparatively pure nickel हमें यहाँ से मिल जाता है। Now in photography also we can use the sample. फोटोग्राफी में हम लोग क्या यूज करते हैं? AgBr के साथ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, sodium thiosulfate, that will give us sodium dithiosulfatoargentate, Na3Ag H2O3 whole twice. देखो सिल्वर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, सिल्वर हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हमेशा याद रखना। जिंक हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो थायोसल्फेट कितने चाहिए यहाँ पे? 2 Na2H2O3। Then so it will give us sodium dithiosulfatoargentate. Not only that, Ziegler-Natta catalyst ये important है for polymerization. Reaction for the formation of HDPE we are using Ziegler-Natta catalyst. What is Ziegler-Natta catalyst? We had done it. क्या क्या रहता है? Ec3 aluminium plus TiCl4. Et3 aluminium plus TiCl4. So do one questions over here. The formula CONH3
whole 4 CO3Br represent 3 isomers. Draw their structure. Question 1 is draw their structure. Question 2 is how we can distinguish these 3 isomers. How we can solve this question? Ma'am, can you once go to the previous? A bit above, like DNG structure. स्क्रीनशॉट अल्टीमेटली कॉपी में आता है और ऐसे स्क्रीन में ही रह जाता है. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट कॉपी में आता है और स्क्रीन में ही रह जाता है. हम स्क्रीनशॉट लेते ही नहीं हैं. सब लेते हैं. हाँ मैम. बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस को, कैसे डील करेंगे? हाउ वी कैन डू विद द क्वेश्चंस? कितने आइसोमर होगा? हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, राइट? तो इट इज ऑब्वियस यहाँ पे 6 हो सकता है. तो अगर 6 यहाँ पे होता है तो कार्बोनेट जो है इट कैन एक्ट एज ए मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट लिगेंड. ठीक है. तो इन दिस केस हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? देखो कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितना है? 4. इसी को एक प्लेनर में रख दिया है. और कितना रहेगा? कार्बोनेट CO3. CO3 मतलब क्या? कार्बोनेट ग्रुप ना, CO3 2-. ठीक है. उसके साथ कौन रहेगा? ब्रोमीन. सो ऑल टुगेदर all are present within the coordination sphere. ये ऐसा रह सकता है. और क्या हो सकता है? कार्बोनेट के साथ ट्रांस में कौन रहेगा? अमोनिया. ठीक है. और क्या हो सकता है? कार्बोनेट क्या बना सकता है? बाइडेंटेट लिगैंड. 2 ऑक्सीजन के साथ बाइडेंटेट लिगैंड बना सकता है. अगर ये बाइडेंटेट लिगैंड बनाता है तो बाहर कौन रहेगा? Br-. Br- will be remaining outside. तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट? हाउ वी कैन गो फॉर इट? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? +3, isn't it? Cobalt has +3 oxidation state. So now how we can distinguish these 3 isomers? ये क्या है? हमारे लिए different type of isomer है. Now tell me whether there is any geometrical isomer is possible. यहाँ पे और कुछ सिस्टर्स हो सकता है from this structure? No. So यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है क्या सिस्टर्स? No. From here whether there is any sister structure? No. क्योंकि 4 जो अमोनिया है
that is also symmetrically present. So here also there is no such cis-trans structure. नहीं, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है. So in this case there are 4 complex compound और उसमें हमें अगर उसको सेग्रीगेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, so you can put the AgNO3. so you can केमिकल का जो टेस्ट होगा, केमिकल टेस्ट जो होगा, if we add AgNO3, it will give us yellow color PPT of AgBr. यहाँ पे कौन सा पीपीटी देखने के लिए मिलेगा? येलो कलर पीपीटी ऑफ AgBr फॉर C. टेबल C में देखने के लिए मिलेगा. A एंड B में हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा. A एंड B we will not get. So we will not get the PPT for A and B. Now come for the infrared spectroscopy theory. देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी जो तुमने क्वेश्चंस डाला था ये स्टेबल है क्या? बिल्कुल स्टेबल नहीं है. तो अगर वो स्टेबल नहीं होता है सिस्टम में, उसका बॉन्ड क्या होगा? वीक हो जाएगा. सो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अराउंड में हमें जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई होगा, दैट विल बी क्वाइट लेस. यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट विल बी क्वाइट लेस. So that is different issue, we will not write over here. So better chemical test, through chemical test only we can identify that bromine is present in a ionization sphere. Br minus is present in the ionization sphere. Bond का जो strength है that cannot be identified क्योंकि वो हमारे syllabus के बाहर है. ठीक है मैम ए और बी दिखाइए ना, एक चीज पूछना है. हम लोग CO को बाहर रख सकते हैं क्या? CO को अगर बाहर रखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे फुलफिल करोगे? 5 कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही करना है. गॉट इट? अच्छा कार्बोनेट है, सॉरी मैं कार्बोनिल ले लिया था, 3 कार्बोनिल. अच्छा अब समझ गया. ठीक. एक अमोनिया को यहाँ से तुम अगर बाहर ले सकते हो, यहाँ से तुम एक अमोनिया को बाहर ले सकते हो, बट फ्रॉम नॉट दिस पार्ट, फ्रॉम हियर यू कैन टेक इट. तो और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. बट अगर यहाँ से तुम अमोनिया का बाहर लेके जाते हो, सो इट विल बिकम अ सॉल्वेटेड कंपाउंड. ठीक है, ये हमारे लिए सॉल्वेटेड हो जाएगा. आयनाइजेशन स्फीयर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सॉल्वेटेड स्फीयर. ये सॉल्वेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें अभी कौन सा टेस्ट करना है? तो अगर A, B, C और D करते हैं, ये और एक हो गया हमारे लिए D, तो कौन सा केमिकल टेस्ट करना चाहिए?
हीट करना चाहिए, सिंपल को हीट करना चाहिए. So if you heat the sample, just warm the sample, not heat. यहाँ पे लिखेंगे warm, क्योंकि heat करने से suppose the coordinate bond, all the coordinate bond will break. So we have to warm the sample, and when the ammonia gas will come out, you have to dip the HCl rod, so white fumes you can find, isn't it? So we can find for the D, if we heat or if we warm the sample, the ammonia gas will evolve, which will give white fumes with concentrated HCl. Okay, do you have questions? Complex compound P exists as two isomers, as two stereoisomers, X1 and X2. Assume both isomers of P on reaction with Br minus replace ammonia molecule by Br minus. So X1 Br minus से साथ treat करके only one isomer, it is dead. X2 को Br minus के साथ treat करके हमें 2 isomer मिलेगा, Y1 and Y2. P is tetraamine dibromide cobalt 3.
Select the correct statement. Out of y1 and y2, only one is optically active. X1 is cis while X2 is trans. X1, X2, Z, X1, Y1, Y2 are optically inactive. Fourth, Y1 and Y2 cannot show geometrical isomerism. Out of Y1 and Y2, only one is optically active. X1 is cis while X2 is trans. Y1, Y2, Z, X1 and X2 are optically inactive. Y1 and Y2 cannot show geometrical isomerism. Which one is our correct statement? कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग से स्टार्ट करें. टेट्राएमीन डाइब्रोमाइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ठीक है. Exist as two isomer X1 and X2. This is in our module. All of you just check it whether it is present in our module level 2. हमारे पास module है. All of you, do you have module? Check these questions. देखो Br माइनस रिप्लेस हो रहा है. ठीक है. Only one isomer Z will be formed. एंड जब यहाँ से Br माइनस रिप्लेस होगा फ्रॉम X2, टू आइसोमर Y1 एंड Y2 विल बी फॉर्म. तो P का स्ट्रक्चर P क्या हो सकता है? P विल बी, P का जो नेमिंग देके रखा है टेट्राएमीन डाइब्रोमो क्लोराइड. तो X1 में हम लोग कैसे लिखेंगे? ब्रोमीन रिप्लेस कर रहे हैं वन अमोनिया मॉलिक्यूल बाय Br माइनस. सो ब्रोमीन जब अगर रिप्लेस करता है, यू आर treating this bromine replace
one ammonia molecule by Br. So यहाँ पे this is suppose ammonia, this is ammonia, this is ammonia, this is ammonia, and this is your Br. तो यहाँ पे एक Br क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है अमोनिया से. Only one isotope